Okay, today our topic is ISLM model. This model is very important from the perspective of economic policies, like whenever these policies like fiscal policy or monetary policy, in what situation these policies are going to impact the macroeconomic variables and how much these policies are going to impact the macroeconomic variables. So we will study all these things in our this model. So let's start with the statement of this model and what's ISLM model. What is the basic, what actually ISLM model shows us. Before I will start with this, before I will go with the statement of this model, what is ISLM model, I will tell you that this model is also called a Hicks-Hansen model. Hicks-Hansen model, as they were the first who gave this model, who developed this model, Hicks-Hansen model. Hicks-Hansen model, generally they developed this model for the representation of macroeconomic framework of Keynesians mathematically. And this model got a great importance during 1940s up to 1970s. इस मॉडल ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया मैक्रो इकोनॉमिक्स में 1940 से लेकर 1970s तक. But one drawback, or we can say that attack which was generally on this model was this model assumed price, that means stable. It assumed price stabilize. There was that during 1940s, 1970 up to 1970s, there was a less importance towards the price, as price got less significance, and 1940s to 1970s, during this period, this model got a great importance. But what happened when during 1970s, when inflation was considered as a great important thing, and this model, what happened, there was an attack on this model. तो कहने का मकसद ये है कि 1940 से लेकर 1970s तक इस मॉडल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और दैट मीन्स फ्रॉम 1940s टू 1970s इस मॉडल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. क्योंकि उस टाइम क्या था, जो प्राइस था उस पर कम, प्राइस जो था उसका रोल कम था किसमें, इकोनॉमी में. प्राइस पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था. लेकिन ड्यूरिंग 1970s, however, what happened, like during 1970s, when the price, or we can say that inflation got a great significance or great importance, and this, however, there was an attack on this model. So let's start with the ISLM model. What is ISLM model actually is? Before we will start what is ISLM with the statement, before we will discuss the statement of this model, let me tell you something about these graphs. Here, look. First of all, have a look on this graph. This graph actually shows something relationship between two variables. Here I have put the rate of interest, here there is investment. So you can see that there is a simple inverse relationship between these two things, that means the rate of interest and investment. Here, where rate of interest goes higher from R1 to R0, or it goes down from R0 to R1, investment goes in opposite direction. The direction in which rate of interest moves, the investment moves in opposite direction in which this variable moves. So I mean to say that जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट उसके अगेंस्ट में चेंज होता है. रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि जब इन्वेस्टर्स क्या काम करते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दे हैव टू बोरो फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, और दे हैव टू बोरो फंड्स फ्रॉम बैंक. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो जाती है. व्हेन कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स दैट कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो वहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाता है. सो दैट्स वाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स. नाउ गो अहेड. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है, लेट्स अज्यूम दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम R0 to R1 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. सो when rate of interest goes down, investment increases. So there is inverse relationship here. तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट करूँ है जो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. बट
जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन DLI इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर इनकम। दैट मीन्स इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन इन द नेट स्टॉक ऑफ कैपिटल। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाती है तो हमारी इनकम लेवल चेंज हो जाएगी। सो फ्रॉम our income changes from Y0 to Y1. When our income changes from Y0 to Y1, what happens? Our this curve shifts upwards. This is our income curve, or we can say that this is our aggregate demand curve. Aggregate demand curve. This is our 45-degree income curve. It divides this quadrant into two halves. Okay, equally. So it shows the points of equilibrium when our this curve joins this curve, ये जो हमारा ये जो लाइन है 45 डिग्री इनकम लाइन, और जो हमारी ये कर्व है ये शो दिखाता है हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जब क्या होता है काम, जब हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई DLI तो इसने इम्पैक्ट किया हमारे इनकम को, DLY को पे इम्पैक्ट किया। तो उसकी वजह से जो हमारी ये इनकम ये कर्व जो है जिसको कहेंगे AD या इनकम Y इक्वल C प्लस एग्रीगेट डिमांड करो C प्लस I प्लस G, इट विल शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन DLI, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये कितना चेंज होगा, वो होगा जितना हमारा DLI, जितना हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई। सो दैट मीन्स when there is a change in one variable, it led to impact our investment impacted our this income variable. That means there is an interlinkage between variables, that's R impacted our investment impacted our income. So let's see here now, यहाँ पे क्या होता है काम, जब हमारी इनकम लेवल चेंज होती है ऑब्वियसली वी विल डिमांड फॉर मनी। इन केस ऑफ मनी मार्केट वी विल डिमांड फॉर मनी। जब हमारी इनकम चेंज हो जाती है Y0 से Y1 चेंज हो जाती है, Y1 चली जाती है हमारी इनकम लेवल, तो हम क्या काम करेंगे, हमारी डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिमांड फॉर मोर एंड मोर मनी, वी आर इंक्रीजिंग अवर डिमांड फॉर मनी। So when we are increasing our demand for money, our this MD money demand function curve, it will shift upwards. So it will shift upwards, but the money supply is fixed. हमारी जो मनी सप्लाई है मनी मार्केट में वो फिक्स है, बिकॉज आवर मनी सप्लाई जो है इट्स डिटरमाइंड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक। ये हमारी सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है कौन, हमारी मनी सप्लाई। जब हमारी मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन आवर इनकम, our MD is now greater than MS. So it will create a disequilibrium in the economy. So in order to bring equilibrium in the economy, we have to increase the rate of interest. So उससे क्या होगा काम, हमारी जो मनी मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। किसकी वजह से, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे। दैट सेकेंडरी क्वेश्चन कि कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, कितना चेंज होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर है। आइए अब यहाँ इस ग्राफ पे नजर मारते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हमारी मनी डिमांड क्या करो है, ये फिक्स है एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम Y0, ये अब फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सपोज मॉनेटरी अथॉरिटी या हमारी सेंट्रल बैंक ने क्या काम किया, उसने हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज किया, उसने हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज किया। नाउ देयर इज अ कंडीशन दैट आवर मनी सप्लाई इज ग्रेटर। नाउ हियर सप्लाई ऑफ मनी इज ग्रेटर देन एक्चुअली द डिमांड फॉर मनी। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये जो एरिया है, इट शोज द एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यहाँ पे ये हमारी मनी सप्लाई कर्व है, इट्स फिक्स, क्योंकि ये वर्टिकल इसलिए है क्योंकि इट्स डिटरमाइंड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। ये हमारी मनी डिमांड है, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। ओके, एंड जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली हमारी जो मनी सप्लाई कर्व होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। जो हमारी ये मनी सप्लाई कर्व है इट विल गो राइटवर्ड्स, ये हमारी राइट साइड में चली जाएगी। तो नाउ देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। ये जो एरिया है इट शोज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। तो जहाँ अब एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, अगेन डिसइक्विलिब्रियम created in our economy, disequilibrium happens in our economy, in our money market. So in order to bring equilibrium in the money market, we have to decrease the rate of interest. जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करते हैं इससे क्या होता है काम, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे R0 पे एक्सेस सप्लाई मनी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा R0 होता है, हमारा सप्लाई मनी जब ज्यादा होती है, किससे, डिमांड फॉर मनी। जो हमारे इंडिविजुअल्स है दे आर नॉट रेडी टू होल्ड दिस एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स वो ज्यादा मनी को प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम हो जाती है किस पे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में। दैट मीन्स नाउ दे आर डिमांडिंग फॉर मोर बॉन्ड्स, बिकॉज केन्शन का व्यू था
तो केनिशियन बोल रहा है कि जो क्या काम है, जो लोग अपना टोटल जो वेल्थ है, फाइनेंशियल एसेट्स है, दे विल होल्ड दिस इन आइदर मनी प्लस बॉन्ड्स, यानी दे विल एलोकेट इन मनी एंड बॉन्ड्स और मनी में एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जब हमारी अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे peoples are not ready to hold this excess of money at this rate of interest. What they will do, they will demand for more bonds. When they will demand more for bonds, what happens, that rate of interest will decrease because now there is a excess demand for bonds, rate of interest will decrease. जब rate of interest decrease होगा, again money demand will increase, demand for money will increase. When demand for money will increase, it will again equate our money demand with money supply, and this will bring equilibrium in our money market. So actually what I was trying to show here, that means that there is a macroeconomic interlinkage among the macroeconomic variables. That means there are interlinkages. That means कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारी इनकम है, जो हमारी इसी तरह हमारा इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इनके आपस में क्या है, और मनी सप्लाई, इनके आपस में इंटरलिंकेजेस है, इनके आपस में जब सपोज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इम्पैक्ट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट करता है हमारी इनकम को, इनकम अगेन इम्पैक्ट करता है हमारी मनी डिमांड को. सो दैट मीन्स देयर इज ए इंटरलिंकेज अमंग द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो अब ये आईएसएल मॉडल हमें यही इंटरलिंकेज दिखाता है किस तरह हमारे जब कोई पॉलिसी आ जाती है हमारी इकोनॉमी में, तो उससे हमारे जो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है इन पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो इन पे इम्पैक्ट पड़ता है और कौन सा वेरिएबल कितना चेंज हो जाता है और किस तरह इक्विलिब्रियम हम लाएंगे इकोनॉमी में हम किस तरह इक्विलिब्रियम लाएंगे. Okay, now let's start with the statement of this model. What this model is actually, आइसलम मॉडल है क्या. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आइसलम मॉडल दिखाता क्या हमें एक्चुअली. अब हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ आइसलम मॉडल. व्हाट इज आईएसएलएम मॉडल? व्हाट इज आईएसएलएम मॉडल? Actually, ISLM model, it gives us combination of rate of interest and income, at which both our money market and goods market are simultaneously in equilibrium. I mean to say that this ISLM model shows one combination. It gives us one combination of rate of interest and income at which both money market and goods market are simultaneously in equilibrium. ये हमें एक कॉम्बिनेशन देता है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इनकम का, जिसपे हमारे बोथ मनी मार्केट और गुड्स मार्केट एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं. उसको बोलते हैं हम आईएसएलएम मॉडल. यानी ये आईएसएलएम मॉडल हमें एक कॉम्बिनेशन देता है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का. तो आईएसएलएम मॉडल क्या है, इसको पूरा स्टडी करने के लिए हम पहले इसके सब कंपोनेंट्स में जाएंगे और उसके बाद पहले जो आईएसएलएम मॉडल है ये डील करता है हमारे दो करोड़ के साथ, दो मार्केट के साथ. दो मार्केट के साथ, एक है हमारा गुड्स मार्केट, दूसरा है हमारा मनी मार्केट. गुड्स मार्केट और मनी मार्केट पहले हम पढ़ेंगे गुड्स मार्केट और उसमें देखेंगे गुड्स मार्केट यानी आईएस करू क्या देता है हमें. दिस आईएस करू डील्स विद गुड्स मार्केट, दिस एलएम करू डील्स विद आवर मनी मार्केट, एंड देन वी विल टेक बोथ goods market and money market and we'll try to find one combination of rate of interest and income at which our both goods market and money market are in equilibrium. मेरे कहने का मकसद यह है कि पहले हम आईएस करू पढ़ेंगे यानी गुड्स मार्केट पढ़ेंगे, वहां पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम निकालेंगे जिसपे हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है. उसके बाद हम एलएम करू पढ़ेंगे यानी मनी मार्केट पढ़ेंगे, उसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट
और इनकम निकालेंगे जिन पे हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। और then what we will do, we will take both goods market and money market simultaneously and try to find one combination of rate of interest and income at which our both goods market and money market is in equilibrium simultaneously. Okay, so let's start with the IS curve. What's IS curve? IS curve, it gives us IS curve or IS schedule, we can say IS schedule, it gives us various combinations, it gives us various combinations of our rate of interest and income at which our goods market is in equilibrium. जो ये आइस कर्व है, आइस कर्व जनरली क्या होता है, ये नेगेटिव स्लोप होता है इसका। ये हमें देता है क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का डिफरेंट कॉम्बिनेशन देता है, जिस पे हमारा ये गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। और गुड्स मार्केट कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है, किस तरह होता है? जनरली हम गुड्स मार्केट तब इक्विलिब्रियम में, उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पे हमारी डिमांड फॉर गुड्स होगा बराबर किसके बराबर, सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जहां पे हमारी डिमांड फॉर गुड्स होगी सप्लाई ऑफ गुड्स पे। और अब हम ये आइस कर्व डिराइव करेंगे कि हाउ दिस आइस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। सिंपल स्टेटमेंट है आइस कर्व का, इट गिव्स अस वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम at which our goods market is in equilibrium, and goods market equilibrium is in a situation where demand for goods is equal to supply of goods, or where our saving is equal to investment, जहाँ पे हमारी सेविंग जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, जहाँ हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। और जो हमारी ये सेविंग है, इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, और जो इन्वेस्टमेंट है इट्स अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई टोल्ड यू व्हाई इन्वेस्टमेंट इज अ नेगेटिव फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। सो इन्वेस्टमेंट इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो सेविंग है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, दैट मीन्स हमारी मार्जिनल MPS, that means हमारी marginal propensity to save will increase due to increase in income. That means change in saving due to change in income, that's called MPS. It will increase due to change in our income. So saving is a positive function of income. Let's derive the IS curve. IS curve किस तरह हम derive करते हैं? तो मैंने कंडीशन बताया आपका, गुड्स मार्केट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होगा जब हमारा इनकम होगा हमारे एग्रीगेट डिमांड के बराबर, और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होता है वो होता है बराबर C कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड होता है। और अब इसके सब कंपोनेंट्स निकालेंगे हमें। C जो होता है बराबर ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इट इज अ फंक्शन ऑफ disposable income, and where B is it's a marginal propensity to consume, that means it shows the slope due to change in our income। हमारे इनकम में चेंज आने की वजह से हमारे कंजप्शन में कितनी चेंज आती है, दिस शोज B, it shows actually the rate of change at which our consumption changes due to change in our income। ओके, ये क्वेश्चन थी हमारे। और जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है बराबर, वो होती है हमारी बराबर इनकम, जो हमारे पास इनकम होती है उस पे हम जब उसमें हम डिडक्ट करते हैं हमारे टैक्सेस, हर एक किस्म का टैक्सेस, चाहे हमारे पास लमसम टैक्स हो, चाहे हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स हो, चाहे कोई भी किस्म का टैक्स हो, और इसमें हम ऐड करते हैं हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स जो गवर्नमेंट हमें देती है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और इन अदर सब्सिडीज, उनको हम ऐड करते हैं। तो इसमें वो टैक्स हम डिडक्ट करते हैं, तो वहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास बच जाता है। तो और उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास, वो होता है बराबर इसमें I0, दैट मीन्स इट्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट हुआ जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडिपेंडेंट हुआ, दैट मीन्स विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, यानी मैंने ये इक्वेशन दिखाता है दिस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जो डी है इट शोज एक्चुअली रेट और स्लोप
जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इट शोज हमारी इन्वेस्टमेंट में कितनी चेंज आती है ड्यू टू चेंज इन आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दिखाता जो रेट ऑफ चेंज हमारा दिखाता है डी। ओके, अब हम देखेंगे कि हम आई स्कोर कैसे डेराइव करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, जो हमारी इनकम हमारी गुड्स मार्केट की कंडीशन इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगी, और इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग के बराबर होगी, या जहाँ पे हमारी डिमांड फॉर गुड्स होगी बराबर सप्लाई ऑफ गुड्स। और ये जो है वाई जो होता है ये टोटल आउटपुट होता है हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, और एग्रीगेट डिमांड होता है डिमांड फॉर गुड्स। एंड नाउ एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो खुद होता है बराबर इसके बराबर कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट समटाइम्स गवर्नमेंट भी डिमांड करती है व्हेन इट फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, एंड दिस आवर नेट एक्सपोर्ट्स। और जो हमारे गुड्स को डिमांड करते हैं बाहर के लोग, जो फॉरेन कंट्री से हमारे गुड्स के लिए डिमांड आती है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। बिकॉज नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है हमारा बराबर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। हमने कितना एक्सपोर्ट्स किया माइनस उसको जब डिटेक्ट करेंगे हम इम्पोर्ट्स, तो वहाँ पे जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। दैट मीन्स हमारी जो नेट हम नेट एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं। तो अब ये हमारे इक्वेशंस थे, ये भी इतनी यहाँ पे। अब देखेंगे कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन y इज इक्वल टू AD। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड द आई स्क्वायर एंड AD, सो y इज इक्वल टू y AD खुद किसके बराबर था, हमारा AD जो था बराबर वो था C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और C खुद किसके बराबर था, C था खुद A प्लस B Y डिस्पोजेबल इनकम, ओके, प्लस I0 minus DI, this is the investment function. Investment is the function of autonomous investment minus rate of interest, ये negative function of rate of interest plus government expenditure plus net exports. Okay, let's go ahead. यहाँ पे जो हमारी इनकम की जो सब्सक्रिप्ट है y इसको ये सेम है, इनको एक साइड में ले जाएंगे, y माइनस बी वाई डी, और यहाँ पे बचा हमारा a प्लस I0 माइनस डी आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे y सेम है, लेट्स इसको आसानी के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे, तो y यहाँ पे बाहर निकलेगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस I0 प्लस सॉरी माइनस इट्स माइनस हियर माइनस डी आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, और अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई है, जब इस साइड में ले जाएंगे डिवाइड होगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम दोनों साइड में उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में इस बार ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 तो 1 माइनस बी इसके साथ 1 माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस बी इसको डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा a प्लस I0 माइनस डी आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स होल डिवाइड बाई 1 माइनस बी। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बी, और यहाँ पे बचा a प्लस I0 प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस डी आई डिवाइड बाई 1 माइनस बी। ओके, तो ये है जो है ये हमारी आई एस करो है, ये हमारी आई एस करो है। लेट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ, तो ये y इज इक्वल टू a1 माइनस बी a माइनस डी आई डिवाइड बाई 1 माइनस बी। तो दिस इज आवर आई एस करो, दिस इज आवर आई एस करो। ये क्या है, ये हमारी आई एस करो है। तो ये दिखाता है जो हमारी इनकम है, दिस इज द नेगेटिव फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर, दिस आई दिस नेगेटिव फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा आई एस करो दिखाता है। और अब हम ग्राफिकली इसको ड्रा करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम कल करेंगे कि हम आई एस करो किस तरह ड्रा करते हैं, किस तरह आई एस करो डाउनवर्ड स्लोप होता है, ग्राफिकली शो करने के लिए हम उसको कल का लेक्चर में हम दिखाएंगे किस तरह आई एस करो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो चलो इस पर एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन होगी तो हम आई एस करो कैसे निकालेंगे। ओके, सपोज हमारे पास कंजप्शन क्या है, कंजप्शन है हमारे पास 100, ये अक्सर बुक्स पे है, ये 0 प्लस 75 YD, दिस आवर डिस्पोजेबल इनकम, दिस आवर कंजप्शन इक्वेशन, एंड आवर इंस्ट्रूमेंट इज द फंक्शन 50 माइनस 25 I। इंस्ट्रूमेंट क्या है वो उसकी इक्वेशन ये है, और हमारी टैक्स वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर, गवर्नमेंट परचेज के बराबर, वो है किसके बराबर, दैट्स 50। ओके, नाउ फाइंड वी हैव टू डिराइव आई एस करो, डिराइव आई एस करो, आई एस
करो। सो y हमारी कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन y होनी चाहिए बराबर c प्लस i प्लस g। ओके, c खुद किसके बराबर है, इसको हम वैल्यू डालेंगे तो y इज इक्वल टू c के बदले क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 0.75 yd। ओके, yd प्लस i के बदले क्या लिखेंगे 50 माइनस 25 i प्लस g। ओके, तो y इक्वल टू 100 प्लस 0.75। डिस्पोजेबल इनकम जो होता है हमारा वो होता है बराबर इनकम माइनस टैक्सेस। जो हमारे पास नेट इनकम बच जाती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस। सो 0.75 डिस्पोजेबल इनकम होती है y माइनस टैक्सेस, y माइनस टैक्सेस, y माइनस टैक्सेस। टैक्स कितना हमारा t वो है वो 50 के बराबर है, क्योंकि t और g सेम है, इनका एक ही वैल्यू है, दैट्स बोथ आर 50 इक्वल टू प्लस 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है वो भी 50 है। ओके, अब वैल्यूज क्या की है, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम जो ये 0.75 y है इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 100 प्लस 0.75 इंटू वाई माइनस प्लस माइनस माइनस 0.75 इंटू 50 प्लस 50 माइनस 25 i प्लस 50। ओके, तो y इक्वल ये 0.75 y साइड में ले जाएंगे, ये होगा y माइनस 0.75 y 100 प्लस 50 दैट्स 200। ओके, दैट्स 200 माइनस यहाँ पे होगा 0.75 इंटू 50 दैट इज 37.5। ओके, 37.5 और यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे माइनस 25 है, माइनस 25 आई दैट्स आई। ओके, तो अब यहाँ पे y कॉमन निकालेंगे, ये बचा 1 माइनस 0.75 गोस, इसको इसके डिलीट करेंगे तो यहाँ पे बचा 162.5 माइनस 25 आई। तो y कॉमन यहाँ पे जब हम इसके वैल्यू डिलीट करेंगे यहाँ पे क्या निकलेगा 1 माइनस 0.75। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पे इसके डिलीट करने के बाद 1 माइनस 0.25 1.62.5 माइनस 25.i, तो इसको ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 162.5 डिवाइड बाई 0.25 माइनस 25 डिवाइड बाई 0.25i। तो ये हमारी IS करो थी, ये हमारी IS करो थी, ये हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन था कि इसका IS करो निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि IS करो ग्राफिकली क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है।